Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्पोर्ट्स टॉपिक के ऑफ दिसंबर मंथ हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये टॉपिक वाइज आपके लर्निंग को काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्विमिंग? सो एमा जेनिफर मैकॉन, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्विमिंग। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, for which year India has recently got the hosting rights for the Asian Rifle या Pistol Cup? So for which year? It is for the year 2026, and the competition is scheduled to take place in New Delhi. Next, Alistair Brownlee has announced his retirement from professional competition at the age of 36. Alistair Brownlee is a double Olympic champion in which sport? So Alistair Brownlee is a double Olympic champion in triathlon. ठीक है, एंड 36 की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स, जो कि अभी लुसेल कतर में हुई। तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इसको जीती गई। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द वीमेंस एंड मेंस सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट इन लखनऊ यूपी? तो वो है PV सिंधु एंड लक्ष्य सेन। Next, Indian hockey team defeated Pakistan in the final to win the Men's Hockey Junior Asia Cup held from 26th of November to 4th of December in Muscat, Oman. This is the location. This victory marked India's which title? This was the India's 5th title. Earlier it was 2004, then 2008, then 2015, then 2023 and now 2024. Next, in which year Saudi Arabia will host the International Federation of Association of Football, that is FIFA Men's World Cup? So Saudi Arabia will be hosting this FIFA Men's World Cup in 2034. Next is, who has recently became the second Indian and 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating of 2800 points after legendary Vishwanath Anand? So Arjun Argesi has reached this title. Next, which country has recently won the Asian Cricket Council Under-19 Men's Asia Cup title by defeating India in the finals held in Dubai, UAE? So right option is Bangladesh. This was the 11th edition of this title, remember this. Next, in December, British racer Lando Norris has won the season-ending F1 Abu Dhabi Grand Prix. Which brand does he represent? So Lando Norris, he drives for McLaren. Next, where will be the 5th edition of Khelo India Winter Games take place between January 23rd and Feb 25, organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports? So this Khelo India Winter Games is scheduled to take place in Ladakh, Jammu and Kashmir. Important students, and they will be the 5th edition of Khelo India Winter Games. Next, Indian Grandmaster D. Gukesh became the youngest world champion at the age of 18, defeating China's Ding Liren to win the World Chess Champion 2024. Question asked here is, he broke the record of which world champion? So he broke the record of Garry Kasparov's
right? He became the world champion at the age of 22 years, 6 months and 27 days. But now D Gukesh has broken his record by 18 years, 8 months and 14 days. Next, which cricket team has recently won the 17th edition of the Syed Mushtaq Ali Trophy by defeating Madhya Pradesh in Bangalore, Karnataka? So right option is Mumbai cricket team, and this was second title of Mumbai's cricket team. Next is recently Team Asia including India's Manika Batra led by Ma Long defeated Team World in the inaugural edition of the Waldner Cup. This Waldner Cup, first edition of this Waldner Cup was held recently. Where was this held? It was held in Norway, and Team Asia has won this title. Next, which Pakistani cricketer announced recently retirement from international cricket? So Mohammad Amir and Imad Wasim, they have announced retirement from international cricket. Next, which of the following are correct with respect to Ravi Chandra Ashwin's retirement from international cricket in December 2024? If we look at the options here, which of the following is right? Option A and B is right, C is wrong. It is saying that Ravi Chandra Ashwin received Padma Shri, one of the India's highest sports honor, for his exceptional contribution to cricket in 2015. Absolutely right, but not Padma Shri but Arjun Award. Next, where will be the 11th edition of International Hockey Federation Hockey Women's Junior World Cup 2025 held? So where this will be held, the 11th edition? The 11th edition will be held in Santiago, Chile. Next, which cricket team has recently won the first edition of the Asian Cricket Council Under-19 Women's T20 Asia Cup by defeating Bangladesh in Kuala Lumpur, Malaysia? This is our team, India. Next, who has recently won gold medal in the International Chess Federation, that is FIDE World Youth Under-18 Open Rapids and Blitz event that was held in Slovenia? So who recently won the gold medal here? Pranav Venkatesh won the gold medal here. Next is, which organization has partnered with Hockey India League to provide live coverage of the 24-25 hockey season across India? It is Doordarshan. Next, in which event Riya Shrestha Thate has recently won a gold medal at the 67th National Shooting Championship competition in New Delhi? That is for 25-meter pistol event. That's all for the day, students. Now let's move to some revision part. नेक्स्ट, अभी दिसंबर में हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया इन्होंने अनाउंस किया रिलीज ऑफ द मेमोयर ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ बाय विच प्रोमिनेंट इंडियन एथलीट? तो दीपा मलिक के द्वारा यहाँ पे ये बुक जो कि है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ को लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया की पहली फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट थी। नेक्स्ट, किन्होंने अभी ऑथर करी चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, जिसको को ऑथर किया गया शेन ओलिवर के द्वारा, लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। तो अभिजीत विनायक बनर्जी के द्वारा इस बुक को को ऑथर किया गया है शेन ओलिवर के साथ मिलके, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स सब कुछ ऑबिटरी पर। पहला है शशि रुइया, द को फाउंडर ऑफ एसआर ग्रुप। इनका रिसेंटली निधन हो गया इन मुंबई, महाराष्ट्र, 81 की एज में। 1943 में इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, शिवापट्टम विट्ठल, जिनको बोला जाता है कि द फादर ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2011 में, एंड 1941 में चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, थॉमस यूजीन कर्ट्स, जो कि को क्रिएटर है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एंड द डार्थमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम के। इनका निधन हो गया लेबनान में इन यूएसए इन नवंबर 2024। तो याद रखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर, अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ओम चेरी एन पिलाई, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 100 इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ओम चेरी एन पिलाई? तो ये एक राइटर थे, ठीक है। 1924 की एज में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 100। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड सरोद प्लेयर, जिनका निधन हो गया नवंबर 2024 में। तो वो है उस्ताद आशीष खान। 2004 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड पद्मा विभूषण अवार्डी का नाम बताओ जिनका दिसंबर 2024 में निधन हो गया। तो वो है सोमनल्ली मलैया कृष्णा, राइट। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2023 में। ये 10वें चीफ मिनिस्टर बने थे कर्नाटका के एंड 19वें गवर्नर बने थे महाराष्ट्र के।
नेक्स्ट, इन दिसंबर इंडियन डैश प्लेयर, तो इंडियन स्क्वॉश प्लेयर राज मनचंदा, जिनको ओल्ड फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, उनका रिसेंटली निधन हो गया 79 की एज में। 1945 में अबोहर में उनका जन्म हुआ था, जो कि पंजाब में, या फिर हम बोले डायरेक्टली पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1983 में। नेक्स्ट, रिनोन डैश एंड पद्मश्री अवार्डी पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 90। तो रिनोन गुजराती सिंगर हैं ये एंड पद्मश्री अवार्डी हैं। इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एंड इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन इंडियन तबला प्लेयर एंड पद्मा अवार्डी जाकिर हुसैन अलाराका कुरैशी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73। व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक? सो 2023 में जाकिर हुसैन अलाकारा कुरैशी, इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। ये 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर है। इनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण सभी से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से 1988 में, पद्म भूषण से सन 2002 में, पद्म विभूषण से 2023 में। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन बायगा ट्राइबल आर्टिस्ट जोध्याया बाय, इनका रिसेंटली निधन हो गया 86 की एज में इन द उमराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में। नेक्स्ट, नेम द फोक आर्टिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी हु पास्ड अवे इन वारंगल तेलंगाना। सो दर्शनम मोगलिया, राइट, इनका निधन हो गया 73 की एज में इन वारंगल तेलंगाना। 1951 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री से इनको सन 2022 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इन नवंबर रिनोन डैश एंड स्कॉलर के.वी. रमन, जो कि अपनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के से फेमस है टू एंशियंट हिस्ट्री, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये एक रियोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, के.वी. रमन, राइट, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है टेरी ग्रिफिथ्स, फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, जिनका निधन हो गया 77 की एज में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर डैश तुलसी गौड़ा, ऑल्सो नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। तो ये क्या है? ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है तुलसी गौड़ा, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं किस स्टेट के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। तो ये चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 5 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्डी एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ कोलकाता, जो कि हैं अमैया कुमार बागची, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन इंडियन डैश एंड पद्मा अवार्डी श्याम बेनिगल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 19, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये रिनोन इंडियन कौन है? ये एक फिल्म मेकर हैं, इनका निधन हो गया। इन्होंने 18 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। पद्मश्री एंड पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से 1976 में एंड पद्मा भूषण से 1991 में। स्टूडेंट्स, आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं। शक्तिकांत दास, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर। कोटक महिंद्रा प्राइम, इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख तोडीवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। देन नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर। सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज डीजीसीआई एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर। कश पटेल, ये 9वें एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। देन यूनिलीवर के सीईओ हैन शुमाकर, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से। देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन। देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ओडीआई विकेट्स वनडे इंटरनेशनल। देन रोहित शर्मा, ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट। सिमिलरली विराट कोहली, ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ओडीआई। गुलवीर सिंह, इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मैन 5,000 मीटर इंडोर रेस। देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ, इन्होंने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया। एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर। आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद
माइक्रो फाइनेंस एंड जेएम फिन होम लोन्स पर। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप। मोबीक्विक इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन अ B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की मतलब इन्वेस्टमेंट से। देन एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ। देन आरबीआई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी। एंड सेबी इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स। अभी 11th एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स देखने को मिली जो कि 28 से 29 नवंबर तक हुई। कहाँ पर हुई थी ये एक्सरसाइज? कोची केरला में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हमें देखने को मिली 28 से 30 नवंबर तक। तो एक्सरसाइज है कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र। एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर। ये 13th एडिशन है इस अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फ्रॉम विच सबमरीन इंडियन नेवी रिसेंटली टेस्टेड द K4 न्यूक्लियर कैपेबल प्लास्टिक मिसाइल। तो INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया था एंड ये सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल है, ब्लास्टिक सबमरीन है, ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन है। आई रिपीट, इंडिया की ये सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन रहेगी। पहली की अगर मैं बात करें वो है INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिघात, राइट। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं INS अरिधा मन जो कि अभी कमीशन होगी 2025 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिनबैक्स, ये एक जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड किस आर्मी के बीच में हुई? पुणे महाराष्ट्र में। तो इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में ये सिनबैक्स एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, पुराना क्वेश्चन है। तो आतिशी मार्लेना सिंह जो कि आतिशी चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, राइट। इन्होंने अभी पहला अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज इनॉग्रेट किया गया था फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। पूछा जा रहा है इस अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज की लेंथ कितनी है? तो ये 25 मीटर इसकी लेंथ रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी जो कि कमेंस की गई पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया में। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? वो है हरिमव शक्ति। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से मेहर रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने ग्रांट किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 5 क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स जो कितने के हैं? जो है 21,772 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली डिलीवर किया सेकेंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्वेलेंस ड्रोन्स टू द इंडियन नेवी एट पोरबंदर बेस इन गुजरात? तो वो है अदानी एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली रिसीव किया कौन सा लॉजिस्टिक ड्रोन? तो सबल 20 ये लॉजिस्टिक ड्रोन रहेगा। नोएडा यूपी बेस्ड UAV मैन्युफैक्चरर एंड्योर एयर से इसको रिसीव किया गया, सबल 20। नेक्स्ट, नेम द अनमैन्ड सरफेस वेसल जिसको अभी रिसेंटली हैंडओवर किया गया नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी को जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है बाय GRSE, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये अनमैन्ड सरफेस वेसल को डेवलप किया गया है। इसका नाम है जलदूत। नेक्स्ट, उस ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस एयरफोर्स एंड UAE एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? डेजर्ट नाइट, राइट। एंड ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, तीनों कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट, नेम द ड्रोन जिसको अभी रिसेंटली डिलीवर किया गया टू द इंडियन आर्मी बाय एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड ताकि इंडिया का सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर बढ़ाया जा सके। तो वो है अर्मा लाइट राइफल 15 जो कि है ET-15। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली डिलीवर किया आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम DRDO को? तो ये मनात्सु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किया गया है टू DRDO। नेक्स्ट, अभी दिसंबर में इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS निर्देशक, सेकेंड ऑफ द 4 सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट शिप इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। किस कंपनी के द्वारा बिल्ट किया गया है ये INS निर्देशक एंड शिप्स अंडर द सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बिल्ट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली सप्लाई किया सेकेंड बैच ऑफ द 360 लॉयटरिंग म्यूनिशंस जिसको नगास्त्रा 1 के नाम से जानते हैं टू इंडियन आर्मी? तो कौन सा, किस कंपनी के द्वारा सप्लाई किया गया सेकेंड बैच? वो है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 7th मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज लैंडिंग शिप एम्यूनेशन 14 को लॉन्च किया गया इन दिसंबर 2024? तो वो है महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, उस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का नाम बताओ जिसको टेस्ट फायर किया गया USA आर्मी USA नेवी के द्वारा फ्लोरिडा USA में? तो ये है डार्क ईगल।
नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया कोंग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ टू सप्लाई एडवांस रिप्लेसमेंट एट सी इक्विपमेंट फॉर इंडियन नेवी की फ्लीट ऑफ 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए। तो किस कंपनी ने ये पार्टनर किया कोंग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ? तो वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड।